Good morning, student. Welcome to the online math class. Today, I explain chapter number 2, polynomial. And in this chapter, I will explain the introduction of the polynomial before the exercise to be started. So, in this video, I will explain introduction of a polynomial. And then after, in the next video, I will explain the exercise 2.1 and so on. जो भी उसके अंदर exercise है. So before now, I will start with my first topic, that is a polynomial. Beta, what is a polynomial here? A type of algebraic expression is called a polynomial. That's mean यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स आए algebraic expressions. तो algebraic expressions की मीनिंग क्या होता है बेटा? Polynomials means a type of algebraic expression. तो algebraic expressions के मीनिंग क्या होते हैं? जैसे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके लिए algebraic expression के लिए समझना होगा constant and variable. What is constant and what is variable? Beta, you very well know. In the previous class, you learned about that terms constant and a variable. Constant means that's a value that is never changed according to the situation. जो किसी भी situations में कभी भी change नहीं होती है, that is called a constant. Just like 1, 2, 3, 4, 5 and so on. These all are constants because beta, if you are an Indian and in India you also say 1 is 1, 2 is 2, 3 is 3. If you are going in another country and you can say about that things कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, तो वो भी वहां पर इसको 1 ही कहेगा, 2 ही कहेगा, 3 ही कहेगा. That's mean कि आप वर्ड में किसी भी जगह चले जाइए, किसी भी पर्सन से पूछिए, इन सारे सिंबल्स को वो 1, 2, 3, 4, 5 ही बोलेगा और कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये सब जगह सेम है. ओके, नाउ तो दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वेरी नहीं करते, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. एंड अ वेरिएबल, वेरिएबल्स मींस के दैट थिंग्स दैट इज वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल. जस्ट लाइक के वी हैव टू टेक द एक्स. ओके, वी हैव टू टेक द एक्स, वाई, जेड and so many things you have to write here as a variable x, y, z, and that is a standard variables name. तो x, y, z, that is x, y, z, ये क्या है आपके वेरिएबल है, because these values to be changed according to the situation. Just like मेरे अकॉर्डिंग x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू यू आपके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, नहीं रखते आप 2, 3, आप रख सकते हैं 5, 6, 7. तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन इसकी वैल्यू आपके पास वेरी करेगी. दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल. क्लियर? नाउ एक्सप्रेशन. Algebraic expression. Okay, algebraic expression means कि if you have to combine these two things, constant and a variable, अगर आप constant and variables को combine करेंगे, is in the form of plus, minus, multiply, divide, means कि इनके साथ आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, that is called a expression. Just like x 2x, सपोज करिए x की हमने कांस्टेंट 2x से मल्टीप्लाई करी, देन आफ्टर यू हैव टू ऐड इट, देन ऐड द 4, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन. ओके, तो दिस इज एन algebraic expression. You have to write another expression just like that, जैसे 3y minus 7. These are another expression just like, and so on. So many types of expression you have to write with the help of a variable and a constant combination, and you have to use that operation with these things. Okay, so this is called an algebraic expression. This is constant, variable and algebraic expression, and these type of algebraic expression type जो होंगे उसको हम polynomial consider करेंगे. Now I will start the things about that polynomial. इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो देखिएगा.
देखिए I will write here the some things about that polynomial, just like x square plus 4x plus 5. Okay, this is the example of polynomial. If you have to write the y square plus 7x plus 5, this is the another example of polynomial. If you have to write the 2x minus 7, example of a polynomial. So many type of things, but according to the expression, these things is to be vary. जैसे अगर आप polynomial को देखते हैं, okay, polynomial, तो you have to divide into two terms, two things, just like first is term and second is degree. ओके, तो पॉलिनोमियल को हम टर्म्स और डिग्री के अकॉर्डिंग कई पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ये इसके पार्ट्स नहीं, ये इनके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी पॉलिनोमियल को. तो टर्म्स, पहले टर्म्स क्या होते हैं, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन द डिग्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द टर्म्स. टर्म्स मींस कि यू हैव टू, दिस इज अ फर्स्ट टर्म, दिस इज अ सेकंड टर्म्स एंड दिस इज अ थर्ड टर्म्स. ओके, इन दिस एक्सप्रेशन हाउ मेनी टर्म्स इज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो यहां पर आप ये फर्स्ट टर्म मैंने बताया, दैट इज कॉल्ड सेकंड टर्म, दैट इज थर्ड टर्म. व्हाई बेटा, ए टर्म्स इज नॉट फ्रॉम अ प्लस और माइनस से जो सेपरेट होगा उसे हम टर्म्स के नाम से जानेंगे. जैसे प्लस एक टर्म्स ये बना तो पूरा एक हो गया, प्लस से सेपरेटेड है तो फर्स्ट टर्म, प्लस से यहां पे भी सेपरेटेड है तो दिस इज द सेकंड टर्म्स, प्लस से यहां पे भी सेपरेटेड, दिस इज द थर्ड टर्म्स. तो विद द हेल्प ऑफ अ प्लस और माइनस, प्लस और माइनस से जो सेपरेट होगा ये फर्स्ट टर्म, ऐसे प्लस माइनस से सेपरेट होगा सेकंड टर्म, ऐसे प्लस माइनस से सेपरेट होगा थर्ड टर्म. बेटा अगर मैं इसको इस फॉर्म में राइट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो हाउ मेनी टर्म्स इज देयर, तो you have to see this three terms, first and this is second, whole things is the second and this is the third term. क्लियर? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो इसके अंदर आपके पास अब कितने होंगे टर्म्स, देखिए, फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड. क्लियर? तो अब आपको टर्म समझ में आ गए होंगे. जो प्लस और माइनस से सेपरेट होंगे उनको हम टर्म्स के नाम से जानते हैं. अकॉर्डिंग टू द डिग्री, अब डिग्री के अकॉर्डिंग चलते हैं. व्हाट इज अ डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल. किसी भी वेरिएबल की, किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री के नाम से जानते हैं. जस्ट लाइक, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करा रहा हूं. एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4. दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आल्सो बी अ पॉलिनोमियल, क्योंकि एक टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो यहां पर आपके पास जो वेरिएबल है, यू हैव अ एक्स वेरिएबल. एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, सी. यहां पर एक्स की, ये कांस्टेंट है, पर एक कांस्टेंट में भी एक्स की यानी कि वेरिएबल की कोई ना कोई पावर जरूर होती है. एक कांस्टेंट में वेरिएबल की जो पावर होती है वो होती है 0. तो इसलिए इस चीज को आप लर्न रखेंगे कि कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल की पावर 0 कंसीडर करी जाती है. तो दैट्स व्हाई यहां पर वेरिएबल की पावर 0. हियर यू हैव अ वेरिएबल पावर 1. ओके, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, दैट इज कॉल्ड अ 1 पावर. एंड here you have a variable power 3. तो इसमें 3 सबसे हाईएस्ट है. तो that's why the degree of this polynomial is the 3. इसकी डिग्री आपके पास कितनी हो जाएगी, 3. इसके लिए मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसकी डिग्री बताइएगा. दैट इज अ y क्यूब, सॉरी, y4 प्लस y क्यूब प्लस y square plus 5. तो you have to possess
pause this video and tell me what is the degree of this expression. Okay, तो you know about that things, आपने सभी ने राइट कर दिया होगा। तो इसकी डिग्री जो है आपके पास क्या होगी बताइए। सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में मैंने बताई थी पावर 0 होती है, तो यानी कि सबसे बड़ी पावर कौन सी हुई? 4 हुई। तो here the degree is 4। क्लियर? तो यहाँ पर अब आपको टर्म्स भी समझ में आ गए होंगे और डिग्री भी समझ में आ गए होंगे। अब डिग्री और टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को कुछ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, तो वो देखिए बेटा। अकॉर्डिंग टू द टर्म, polynomial is distributed in my according to my chapter or syllabus। ये टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मोनोमियल, सेकंड इज बाइनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल। What is monomial? Monomial means in this polynomial the terms is 1। जहां पर पॉलिनोमियल में आपके पास केवल एक ही टर्म होगा, तो यहां पर 1 टर्म होगा, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ओके, इसके लिए इसके पास एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है जस्ट लाइक 2x, x क्यूब, y क्यूब। तो these are the examples of these monomial। तो यहां पर ये आप देख रहे होंगे 2x। ओके, तो 2x इज अ 1 टर्म, x क्यूब दैट इज सेकेंड टर्म, y क्यूब ये भी एक टर्म है अकेला, सिंगल टर्म है, तो दैट्स व्हाई ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, तो दैट इज कॉल्ड अ मोनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल मींस 2 टर्म। जिस एक्सप्रेशन में आपके पास 2 टर्म्स होते हैं दैट इज कॉल्ड है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल जैसे आपके पास कोई एग्जांपल क्या हो सकता है जिस एक्सप्रेशन में आपके 2 टर्म्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक 2x माइनस 7। तो इसमें देख रहे होंगे, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये वाला आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है, 2 टर्म से मिलकर के ये एक्सप्रेशन बन रही है, दैट्स व्हाई दिस इज अ बाइनोमियल। नाउ द ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मींस जिसके अंदर आपके पास 3 टर्म्स होते हैं। ओके, 3 टर्म्स एक्सप्रेशन इज नोन एज द ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल मींस जस्ट लाइक अ एग्जांपल ऑफ द ट्राइनोमियल x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, और तीनों टर्म्स मिला करके प्लस के ऑपरेशन के साथ में एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। तो here this is the trinomial। okay, now the if the more than these terms is come here, so that is called a polynomial। okay, means के अगर आपके पास 3 टर्म्स से ज्यादा के टर्म्स आते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड a polynomial। now that according to the terms they are distributed in these form। now the fourth is degree। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री। डिग्री तो आपको मैंने बताई दी थी, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल दैट इज कॉल्ड अ डिग्री। तो यहां पर ये आपके पास डिग्री हुई। अब डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो देखिए। फर्स्ट इज लीनियर, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक, एंड थर्ड इज क्यूबिक। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा? जिसके अंदर आपके पास डिग्री होगी 1, मींस के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑफ दीस थिंग्स इज जस्ट लाइक
you have to write the 2x minus 7 or 3x plus 5. तो these are the examples of the linear polynomial. यहाँ पर इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में आप देख रहे होंगे, इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में आप देख रहे होंगे इसमें x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है. ऐसे ही इस एक्सप्रेशन में आप c देख रहे होंगे कि यहाँ पर x की पावर सबसे बड़ी क्या है, 1 है. That's why this is a linear polynomial. This is also a linear polynomial. Now the quadratic polynomial. Quadratic polynomials means जिसकी डिग्री आपके पास 2 हो, जिसकी डिग्री आपके पास 2 होगी, that is called a quadratic polynomial. तो quadratic polynomial कैसे हो सकते हैं बेटा? Just like 2x की पावर 2 plus 5. This is a quadratic polynomial because you have to see this x to the power 2. Okay, x raised to the power 2. That is called a degree of 2. That's why this is called a quadratic polynomial. और कोई एग्जाम्पल? Yes, x square plus 2x plus 1. This is another example. तो x square that is called a quadratic polynomial. x square इसकी highest power x square है. That's why quadratic polynomial. Cubic polynomial जस्ट लाइक जिसमें डिग्री आपके पास 3 हो, ठीक है. क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपके पास 3 हो, तो इसके लिए एग्जांपल आप राइट कर सकते हैं x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ओके, तो यू हैव टू सी हियर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. इन दिस एक्सप्रेशन यू हैव टू सी द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 3. ओके, तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है, 3 है. दैट्स व्हाई दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. यू हैव टू अंडरस्टूड दिस ऑल ओवर द थिंग्स. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट अ कोएफिशिएंट एंड अ zeros. So first of all, I will explain the polynomial identify. आप पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आपके पास मैं यहाँ पे एक एग्जांपल राइट कर रहा हूँ. x की पावर आपके पास 1 है एंड प्लस 7. तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पर जो आपके पास वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 1 है. तो पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको देखना होगा कि उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है या वेरिएबल की जो पावर है, सारी पावर वेरिएबल जितने टर्म्स आ रहे हैं उनमें सब में एक एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उनमें सब में जो वेरिएबल x है या जो भी वेरिएबल y आएगा या t आएगा उस वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए. जस्ट लाइक कि x की पावर 2 इस फॉर्म में होनी चाहिए, x की पावर 3 इस फॉर्म में होनी चाहिए, x होना चाहिए या केवल कांस्टेंट हम राइट कर सकते हैं. तो दीज आर द पॉलिनोमियल. जैसे यहाँ पर x की पावर क्या है, 2 है. यहाँ पर x की पावर क्या है, 3 है. यहाँ पर x की पावर 1 है. इस कांस्टेंट में मैंने बताया था अभी x की पावर 0. तो दैट्स व्हाई इनमें पावर आपके पास एक होल नंबर होगी, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. इफ ये पावर होल नंबर नहीं है, ये पावर इस फॉर्म में है, जैसे 1 अपॉन x आपके पास राइट आ गया, 1 अपॉन y आपके पास राइट है, 1 अपॉन y है, अंडर रूट y है, अंडर रूट t है, क्यूब रूट t है. तो इस फॉर्म में है तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो प्रॉपर डिफाइन नहीं. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. बट यहाँ पर जो पावर है वो एक होल नंबर की फॉर्म में है, तो दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, वो देखिएगा. यहां पर मैंने आपको राइट करके दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7. ओके, तो दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज
इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 0 है। तो यहाँ पर सभी टर्म्स में x की जो वेरिएबल की x वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर है, दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब मैं यहाँ पे एक और टर्म लिखता हूं x प्लस 1 अपॉन x। बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ यहाँ पर तो x की पावर होल नंबर है, बट यहाँ पर x की होल नंबर नहीं है क्योंकि ये अपॉन में आ गया है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 2x प्लस अंडर रूट 3, 2x प्लस अंडर रूट x ये है, और एक आपके पास है अंडर रूट x प्लस 2, एक ये पॉलिनोमियल, एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है। तो बेटा ये पॉलिनोमियल होगा बट ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो x की पावर है ये वाली, ये x की पावर भी 1 है और ये वाली x की पावर भी 1 है। हमें केवल x की यानी कि वेरिएबल की पावर को देखना है, तो वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल। बट यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ आई विल टेल यू द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट जैसे मैंने आपसे सपोज करिए आई विल टेल यू अबाउट अ कोफिशिएंट ऑफ x। तो मैंने आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो बेटा यहाँ पर अगर इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट मींस द मल्टीप्लायर ऑफ दैट वेरिएबल, उस वेरिएबल का मल्टीप्लायर क्या है, दैट इज कॉल्ड ए कोफिशिएंट। तो x का मल्टीप्लायर क्या है? 3, x को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो दैट्स व्हाई द x का कोफिशिएंट क्या हुआ? 3। अब मैंने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताइए, तो इन दिस एक्सप्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज x स्क्वायर, ये है टर्म्स, तो इसका मल्टीप्लायर कौन सा है? इसका मल्टीप्लाई किसने किया है? 2 से, तो दैट्स व्हाई द आंसर इज 2। ओके, अब मैंने आपको एक और एक्सप्रेशन दी, जैसे जस्ट लाइक 3x स्क्वायर प्लस 5x। मैंने इस एक्सप्रेशन में आपसे कहा कि आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट जस्टिफाई करके बताना है, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? तो हियर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3 बिकॉज you have to multiply x square with 3. Here the coefficient of x is 5 because you have to multiply x with 5. Okay, so according to these things you have to do this chapter. ये आपके पास एक चैप्टर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, तो if this introduction you have to like, so then you have to subscribe this channel and also like this video. Now the last and final terms I will discuss about these things, that is the zeros. Okay, zeros. What is zeros? Okay, तो zeros क्या होते हैं आपके पास? बेटा zeros होते हैं जीरोस। ओके, जीरोस क्या होता है बेटा? जीरोस मींस के आपके पास अगर कोई भी एक्सप्रेशन, दिस इज एन पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन, ये एक पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन है, तो ये जब पॉलिनोमियल होगी तो ये एक एक्सप्रेशन भी है, पॉलिनोमियल भी है, तो ये पॉलिनोमियल में आप x की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिससे ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए। क्या बोला कि x की कौन सी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे जिससे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो वैल्यू इस एक्सप्रेशन के लिए जीरोस होगी। जस्ट लाइक यू हैव टू राइट द x इज 2 इंटू माइनस के 7/2। आप x की जगह पर -7/2 पुट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में, तो देखिए ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। करके देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो -7 प्लस 7, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज 0। तो हमने x की कौन सी वैल्यू पुट करी? x इज इक्वल टू -7/2। x की जगह पर हमने -7/2 यहां पर पुट करी है,
तो उससे ये वैल्यू जो है हमारी 0 हो गई है, तो दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू -7/2 इसका जीरोस होगा। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग्स। जीरोस मींस कि जिस एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू रखने पर वो एक्सप्रेशन टेंड टू 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ जीरोस। क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।